پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے اور اس خوبصورت وقت کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگیوں میں عطا کیا تاکہ ہم خداوند کے نام کو عزت دیں، جلال دیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے اور ہمارے چرچ کی جانب سے آپ سب کو کرسمس کی ساری خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں، اور میری دعا ہے خداوند اس کرسمس کو آپ سب کے لیے بڑا بابرکت بنائے اور آپ سب کے لیے بڑا ہی یہ کرسمس جو ہے یہ خداوند خوشیوں بھرا کرسمس بنائے تاکہ آپ کے خاندان میں اور زیادہ خداوند خوشی اور مسرت کو بھیجتا رہے۔ خداوند آپ سب کو بلیس کرے، برکت دے۔ میں آپ سب کو اس لائیو سروس میں ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ جتنے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آپ ضرور اس لائیو سروس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اور آپ بہت سارے لوگوں کے لیے بابرکت بن سکیں۔ اور میرا ایمان ہے جب آپ دوسروں کے ساتھ اس لائیو سروس کو شیئر کریں گے تو یقیناً بہت سارے لوگ آپ کے وسیلے سے برکت پائیں گے اور خدا کے کلام کو سیکھ سکیں گے۔ اور اسی طور سے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں جتنے لوگوں نے جو گزشتہ میری ویڈیو تھی خاص طور پہ کرسمس کیک کٹنگ کے حوالے سے جو میرا مسیح قوم کے نام ایک اہم پیغام تھا، آپ سب نے اس پیغام کو بہت زیادہ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ مجھے بہت زیادہ کالز آئیں اور کئی ایسی جگہوں پہ مجھے جانے کا بھی اتفاق ہوا ان دنوں میں، اور جہاں بھی میں گیا ہوں بہت سارے لوگوں نے مجھے اس بات کی خبر دی اور ٹیلی فونک رابطہ کیا اور مختلف طریقوں سے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے خود بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے، اور اس کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں آپ سب کی محبت کے لیے، اس ساری پذیرائی کے لیے کہ آپ سب بڑی محبت کے تحت میری ان تمام ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم مل کر اس ویژن کو لے کر چلے ہیں، اس تحریک کو لے کر چلے ہیں، تو یقیناً خدا اس میں ہمیں کامیاب بھی کر رہا ہے۔ اس دفعہ بہت کم میں نے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے، بہت سارے ایسے ابھی پروگرامز ہو چکے ہیں جہاں پر صرف مسیحی لوگوں کو کیک کاٹنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشائند بات ہے، لیکن ابھی بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو اس بات کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے بڑے سخت کمنٹس بھی کیے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھی مجھے مختلف کمنٹس بھجوائے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے تو پازیٹیو دیا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں اور ایک ایسا طبقہ ہے جو خاص طور پہ میری اس بات کے خلاف ہے کہ میں کیوں اس بات کو کر رہا ہوں کہ صرف مسیحیوں کو کیک کاٹنا چاہیے چرچز میں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غلط کمنٹس بھی کیے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ بھی میسیجز بھجوائے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ آپ آئسولیٹ ہو کر رہ جائیں گے، آپ کی یہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی۔ تو میں میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک خداوند کے فضل سے 100% سکسیسفل ہے، کامیاب ہے، اور بہت سارے لوگ اب اس تحریک کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ ایک جگہ سے شروع ہوئی اور آج پورے ملک میں یہ تحریک جو ہے یہ پھیل چکی ہے، اور ہر چرچ میں ہر خدا کے خادم کے پاس یہ ہماری ویڈیو پہنچ چکی ہے، اور بہت زیادہ خادموں نے مجھے کالز بھی کی ہیں اور اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ہم آئندہ سے اپنے چرچز میں ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ پریز گاڈ۔ اور اس کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے مجھے غلط میسیجز بھی کیے ہیں، بڑے نیگیٹو کمنٹ پاس کیے ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ خداوند ان سب کو برکت دے اور خداوند ضرور ان کی جو رہنمائی ہے وہ کرے تاکہ وہ آئندہ اس تحریک کا خود بھی حصہ بنے اور اپنے چرچز کو اور کلیسیاؤں کو اور مسیحی اجتماعات کو، مسیحی پروگرامز کو اور جتنی بھی مسیحی تقریبات ہیں ان کو وہ ناپاک ہونے نہ دیں اور ان کا تقدس جو ہے وہ بحال رہے۔ خداوند آپ سب کو بلیس کرے، برکت دے، اور جس طور سے گزشتہ آپ سب نے بہت
میرے मैसेजेस को पजीराई दी है, मैं इसके लिए सारा जलाल खुदावंद को देता हूं। आज भी जितने लोग आप मेरे साथ शामिल हैं और खुदा के कलाम के एक अहम आज टॉपिक को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप जरूर इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ और बहुत सारे लोग जो हैं खुदा के इस कलाम को जान सकें, सीख सकें, ताकि हम बहुत सारी जिंदगियों के लिए बाबरकत बन सकें। एक आम हमारे जो मुआशरे में खराबी पाई जाती है कि गरीबों की मदद की जाती है और उसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर लगा दी जाती हैं जिससे एक बहुत बुरा तासुर जो है वो लोगों को मिलता है। सो आज इसी गर्ज से हम खुदा का कलाम सीखेंगे, जानेंगे और मेरा ईमान है यकीनन आप खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे और हर बात का सबूत हमें खुदा के कलाम में से मिलेगा कि क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो लोग ऐसा करते हैं उनके पीछे उनके लॉजिक्स क्या हैं, क्या वजूहात है, क्या मकासद है, क्यों वो इस तरह से करते हैं। सो ये सारी बातें जानने के लिए जरूर इस मैसेज को आप खुद भी सुने और दूसरों के लिए भी बाबरकत बने। सो सबसे पहले हम कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, मेरे साथ मिलकर निकालिए नए अहद नामे में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6वां बाब और इसकी पहली 4 आयात बाइबल मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है जरूर इस हवाले को तिलावत करें मेरे साथ मिलकर, ताकि आप इस तिलावत में भी शामिल हो सकें। खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत दे। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए न करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अज्र नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा न बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, ये खास तौर पे हमने पहाड़ी वाज में से पढ़ा है। मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस लूका दोनों ने मुनफरद अंदाज में मुख्तलिफ तरीकों से और इन पुरफजल बातों को स्पुर्द कलम किया है, इनको लिखा है, कलम बंद किया है। और हम चूंकि मुकद्दस मत्ती रसूल के लिखे गए इस पहाड़ी वाज में से इस हिस्से को पढ़ रहे हैं, जो मुकद्दस मत्ती रसूल हैं इन्होंने ज्यादा तफसील के साथ इसे बयान किया है और तकरीबन 3 जो अबवाब हैं, 5वें बाब से लेकर 7वें बाब तक, ये अबवाब जो हैं पहाड़ी वाज की तालीमात से भरे हुए हैं, जिनमें खुदावंद यीशु मसीह अपनी तालीमात अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह का पहाड़ी वाज नए अहद की एक शरीयत है जो खास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह से बिलोंग करती है, जिसका ताल्लुक जो है यह खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। और कैसी हैरानी की बात है, जो पहली शरीयत मिली पुराने अहद की, जो शरीयत मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा की मार्फत हम तक पहुंची, वो भी पहाड़ पर दी गई। और आज ये जो दूसरी शरीयत है, नए अहद की शरीयत है, ये भी पहाड़ पर नाजिल हुई है और हम तक पहुंची है। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले ये कलाम हमें मिला है। सो कलाम मुकद्दस इस बात की तस्दीक करता है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों से कलाम किया है, अपने लोगों से वो हम कलाम हुए हैं और इस वक्त वो पहाड़ पर मौजूद थे। पहाड़ पर शरीयत का मिलना, तालीम देना खुदावंद यीशु मसीह का इसलिए भी अहम है, जैसे पहाड़
बुलंदी को जाहिर करते हैं, बड़ी मजबूती को जाहिर करते हैं, अटल होने को भी जाहिर करते हैं कि जो शरीयत है ये सबसे बुलंद और उत्तम दर्जा रखती है, इंतहाई मुस्तहकम है और अटल है, ना बदलने वाला खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम है। महात्मा गांधी ने एक दफा बयान किया कि इस पहाड़ीवाद से मिलती जुलती उनकी दो बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। महात्मा गांधी ने एक दफा बयान किया कि अगर मुझे भगवत गीता से महरूम कर दिया जाए, जो कि उनकी शरीयत है, तो कहते हैं कि अगर मैं उसके बारे में भूल जाऊं, उसे छोड़ दूं, अलग हो जाऊं और मुझे पहाड़ीवाद का एक नुस्खा भी मिल जाए, मुझे पहाड़ीवाद का एक नुस्खा ही मिल जाए, तो मुझे इस पहाड़ीवाद से वही मुसरत मिलेगी जो मुझे भगवत गीता से मिलती है या होती है। इसके साथ साथ एक मुसन्निफ एस.जे. कोरे ने अपनी एक तसनीफ कलमबंद की, जिसका नाम, इस किताब का नाम है, तसनीफ का इनका नाम है ट्रेजरी ऑफ क्रिश्चियन फेथ, मसीही ईमान का खजाना। अगर आप के पास हो या आप जरूर इसको लेकर पढ़ें, खरीदें इस बुक को, बड़ी जबरदस्त किताब। और इसमें ये एस.जे. कोरे जो हैं ये बयान करते हैं कि क़याम पाकिस्तान से कबल जो हिंदू लीडर महात्मा गांधी है, उस वक्त के जो वायसराय हैं, इनके माबैन जो है, वायसराय उनका नाम था, लॉर्ड अरुण उनका नाम था, इनके माबैन एक बैठक हुई, मुलाकात हुई और वहां पर जो लॉर्ड अरुण हैं, उन्होंने महात्मा गांधी से एक सवाल किया। उन्होंने उससे दौरान गुफ्तगू पूछा कि गांधी जी, अगर आप मेरी रहनुमाई करें कि कैसे इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान जैसे बड़े जो मुमालिक हैं, आप क्या समझते हैं कि इनमें कैसे अमन पैदा हो सकता है? तो महात्मा गांधी ने बड़ी खूबसूरत उस वक्त के वायसराय को एक बात कही जो बड़ी ही जबरदस्त बात है। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक तजवीज देता हूं और वो ये है कि अगर पहाड़ीवाज पर लोग अमल करना शुरू कर दें तो ना सिर्फ हिंदुस्तान, इंग्लिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में अमन और सलामती जो है ये कायम हो सकती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस एतबार से जो खुदावंद यीशु मसीह का पहाड़ीवाज है, इंतहाई अहमियत का हामिल है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस पहाड़ीवाज को बयान करते हुए इस बात को बयान किया है। जब हम 5वें बाब से आगे बढ़ के 6ठे बाब में जाते हैं तो यहां पे रास्तबाजी के कामों का जिक्र किया गया है। लिखा है कि अपने रास्तबाजी, खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। और जैसे ही ये बात खत्म होती है, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह रास्तबाजी के 3 काम बयान करते हैं। पहला काम खैरात करना, दूसरा काम जैसे यहां पे बयान किया गया है दुआ करना, और तीसरा काम रोजा रखना। 3 रास्तबाजी के काम बयान किए गए हैं। पहली बात खैरात, दुआ और रोजा। इसका मतलब यह है कि जितना दुआ करने को हम समझते हैं कि उससे पोशीदा रखना चाहिए और ज्यादा हम खुदावंद से अजर पा सकते हैं, रिवार्ड हासिल कर सकते हैं, इसी तरह से रोजे को जितना हम पोशीदा रखते हैं तो हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि जितना ये पोशीदा रहेगा उतना हमें रिवार्ड मिलेगा, उतना हमें अजर मिलेगा। इसी तरह से जिस तरह से रोजे को पोशीदा रखने से अजर मिलता है, दुआ को पोशीदा रखने से अजर मिलता है, इसी तरह से जब हम खैरात करते हुए इसको पोशीदा रखते हैं तो कलाम बयान करता है कि इसका रिवॉर्ड, इसका जो अजर है वो हमें मिलता है। और कई दफा बड़ी हैरानी होती है, बहुत सारे लोग रोजे को पोशीदा रखते हैं, दुआ को भी, अपनी जो पर्सनल प्रेयर है, जो शख्सी दुआ है खुदावंद के साथ जो उनका पर्सनल रिलेशनशिप है, उसको पोशीदा रखते हैं। लेकिन कैसी हैरानी की बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं ये खैरात को पोशीदा नहीं रखते हैं,
खैरात का डंडोरा पीटते हैं, वावेला मचा देते हैं और किसी एक को खैरात देकर ऐसे शो करते हैं जैसे उन्होंने लाखों को दिया है और बहुत सारे लोग जो हैं उनकी वजह से फैज़याब हो रहे हैं। जितने गरीब लोगों की मदद करते हुए ये तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाते हैं, जरूर कलाम मुकद्दस के इस हिस्से को पढ़ें, इस हिस्से पर गौर करें और आज खास तौर पे इस सर्विस को अटेंड करें। खुदा का कलाम आपकी रहनुमाई करेगा, सिखाएगा, बताएगा। खुदा का कलाम आपको और ज्यादा रहनुमाई देगा कि जब गरीबों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो हमें कैसा रवैया रखना चाहिए। कभी आप लोगों ने, जिन लोगों को आप मदद देते हैं, उन मासूम और उन सादा गरीब लोगों के चेहरे को देखा है? कैसी बेबसी उनके चेहरों पर मौजूद होती है और कैसे वो बेबस होते हैं कि आप उनकी तस्वीरें ले रहे हैं लेकिन फिर भी वो खामोश हैं, फिर भी वो खामोश हैं। उनकी मजबूरी है, कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता है या नहीं चाहता कि इस तरह से उसकी तज़हीक, उसे जलील किया जाए। लेकिन हैरानी की बात है, वो बेचारे जलील नहीं होना चाहते। उनकी खुददारी को और उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज्जत नफ्स है, उसको खास तौर पर उसका जनाजा निकाल दिया जाता है जब आप सोशल मीडिया पर किसी गरीब की मदद करके उसको कोई टोकन ऑफ लव दे रहे हैं, उसको कोई पैकेट दे रहे हैं या उसको कुछ भी देकर उसकी पिक्चर जो है सोशल मीडिया पर लगाते हैं। तो यकीन जाने, अगर कभी खुदा न खास्ता अगर आपकी फोटो लगा दी जाए तो मेरा ख्याल है आप उस बंदे को जान से मार देंगे कि आपने मेरी फोटो क्यों लगाई है। लेकिन देखें, ख्याल करें कि कितना जुल्म कर रहे हैं आप लोगों की हेल्प करने की बजाय उन पर जुल्म ढा रहे हैं। आप उनको कह लें कि खुराक तो दे रहे हैं लेकिन अंदर से उन लोगों को तोड़ रहे हैं, उनको ऐसा जख्मी कर रहे हैं जिन जख्मों का कोई हील भी नहीं कर सकता है। ऐसे उनको जख्म लगा रहे हैं, ऐसा उनको दर्द दे रहे हैं जिसकी दवा भी कोई नहीं है। सो खुदारा रहम करे इन लोगों पर। और ये जो खास तौर पे मैं बताना चाहता हूं, ये जो तस्वीरें लगाने वाले लोग हैं, मैं समझता हूं ये बहुत बेहिस लोग हैं, बेजमीर लोग हैं। इनका जमीर मर चुका है और ये मुर्दा जमीर लोग हैं जिन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वो किसी के साथ कितनी बड़ी ज्यादती करने लगे हैं। वो मदद कम देते हैं और जलील ज्यादा करते हैं। सो खुदारा मैं इस बात के लिए आप सबसे ये कहना चाहता हूं, जितने लोग भी ऐसा करते हैं, खुदारा तस्वीरें बनाने से और उन्हें सोशल मीडिया पर चढ़ाने से, लगाने से गुरेज करें। ये तस्वीरें बनवाकर दूसरों को नीचा दिखाना इंतहाई शर्मनाक, अफसोसनाक बात है। आप जानते नहीं किस मजबूरी के तहत कोई आपसे मदद लेता है और कोई आपसे वो हेल्प रिसीव करता है, लेकिन आप उसकी मजबूरी का इंतहाई गलत और नाजायज फायदा उठाते हैं। आप देखें, यहां खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमें सिखाता और हमें बताता है कि ये जो नमूदो नुमाइश है, ये जो दिखावा है, ये जो रियाकाराना रवैया है, इंतहाई सरजनश की गई है खुदावंद यीशु मसीह की जानिब से। इंतहाई मुजम्मत की, कंडम किया गया है इस बात को कि ये जो है ये काबिल कबूल नहीं है। लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, हैरानी की बात है। फिर आप कहते हैं मैं मसीही हूं जी, मैं मसीही होते हुए दूसरों की हेल्प कर रहा हूं। वे कैसे मसीही हैं? अगर मसीही होते हुए आप खुदा के कलाम को रद्द कर रहे हैं तो आप फिर कैसे मसीही हैं? कैसे आप ईमानदार हैं? किस तरह का आप कलाम पढ़ते हैं? अगर आपको इतनी भी समझ नहीं है कि खुदा का कलाम मुझे क्या सिखा रहा है, खुदा का कलाम जो है ये मेरी क्या रहनुमाई कर रहा है, अगर आपको ये समझ नहीं है तो फिर खुदारा मदद भी ना करें। आप जुल्म कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले जब यहां पे दुआ के ताल्लुक से कहा गया है कि खास तौर पे रियाकारों की तरह दुआ ना करो, तो ये लोग आमतौर पे ऐसा करते थे कि स्पेशली ये जो फरीसी थे अपना वक्त निकालते थे और अपना वक्त मुकर्रर करते थे। 1 घंटा अलग मुख्तस किया जाता था, किस लिए? ताकि लोग इकट्ठे हो जाएं और
یہ تب تک دعا شروع نہیں کرتے تھے جب تک لوگ، دیکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کے پاس کھڑے نہیں ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے کے بارے میں بھی یہی کیا کرتے تھے۔ سو اسی اعتبار سے خداوند یسوع مسیح نے خیرات کے تعلق سے بھی بیان کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ، اور میں نے کئی لوگوں کو پڑھا بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں کوئی نرسنگا نہیں بجوایا جاتا تھا اور کوئی اس طرح سے نہیں کرتا تھا، لیکن ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے اور اگر انہوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو ریاکار ہیں عبادت خانوں اور کوچوں میں ایسا کرتے ہیں، تو یقیناً وہ کیا کرتے تھے۔ میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا تو وہاں پر مجھے اس بات کو جاننے کا موقع ملا کہ یہ جو فریسی تھے یہ اپنے لیے ایک نرسنگا لیتے جو خاص طور پہ سلور کلر کا ہوتا تھا، اور وہاں جا کر یہ خاص طور پہ گلیوں میں، بازاروں میں اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت خانوں میں جا کر اس کو بجواتے تھے، اور اس کے بعد یہ خاص طور پہ لوگوں کو کال کرتے تھے، انہیں بلاتے تھے کہ آؤ، غریبوں کا مددگار تمہارے درمیان میں آ گیا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا تمہارے درمیان میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے، اور یہ تب تک کسی غریب کی مدد نہیں کرتے تھے جب تک دیکھنے والے وہاں پہ اکٹھے نہ ہو جاتے تھے، جب تک بہت بڑا مجمع نہ لگتا تھا۔ سو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا کرتے تھے۔ یہ کام جو ہے یہ خاص طور پہ بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں کیا جاتا تھا، عبادت خانوں کے سامنے کیا جاتا تھا، لیکن یہ ہیکل کے سامنے اس کام کو نہیں کرتے تھے، اس لیے کیونکہ یہ ہیکل میں کرنے کے لیے تعلیم نہیں تھی، ہیکل کے سامنے ایسا کرنے کے لیے تعلیم نہیں تھی، اس لیے یہ ہیکل کے سامنے تو نہیں جاتے تھے، لیکن عبادت خانے جو خاص طور پہ انہوں نے خدا کی عبادت کے لیے تعمیر کیے تھے، بنائے تھے، وہاں پر جا کر ان کے سامنے کھڑے ہو کر بہت بڑا مجمع لگاتے تھے، اور جب تک مجمع اکٹھا نہیں ہو جاتا، لوگ اکٹھے نہیں ہو جاتے، یہ کسی غریب کی ہیلپ نہیں کرتے تھے۔ جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل بھی بہت سارے لوگ جو ہیں یہ اسی لیے، ان کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے، مقصد ان کا سپورٹ کرنا نہیں ہے۔ اگر ان کا مقصد یہ ہو، یاد رکھیں ہم بھی اس طرح سے سپورٹ کرتے، ہمارا چرچ سپورٹ کرتا، لیکن ہم نے کبھی کسی کی تضحیق نہیں کی ہے۔ خدا معاف کرے، ہم نے اگر کسی کو ہیلپ دی ہے، مدد دی ہے، تو مجھے یاد ہم نے یہ کورونا کے دنوں میں جب اپنے چرچ کی جانب سے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سیکھیں، جانیں کہ کس طرح سے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو گھروں میں کالز کی ہیں اور ان کو بلوا کر فردن فردن اکٹھے نہیں بلوایا ہے تاکہ کسی ایک کو دوسرے کا پتہ نہ چلے کہ ہم نے کس کو سپورٹ دی ہے، کس کی مدد کی ہے۔ اور دوسری دفعہ جب ہم نے سپورٹ کی تو لوگوں کے گھروں میں ایک ہی شخص گیا ہے اور ان کے گھر میں دے کے آئے تاکہ کسی دوسرے کو اس بات کا علم بھی نہ ہو سکے۔ دوسروں کی عزت نفس کا خیال کریں، خدارا اس کی رسپیکٹ کریں، عزت کریں، اور ڈریں اس وقت سے۔ خدا نخواستہ اگر کل کلاں آپ کو اس طرح سے سپورٹ لینی پڑے یا آپ کی کوئی تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر لگا دے تو آپ کا کیا حال ہوگا۔ سو خدارا اس دن سے ڈریں۔ اور اس لیے یہ لوگ جو ہیں ان کے پیچھے جو تصویریں بنواتے اور پھر انہیں سوشل میڈیا پہ اس طرح سے ایڈورٹائز کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے مختلف پوزز بنا کے یہ کرتے ہیں، سو ان سب کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو مقصد ہے یہ ہرگز دوسروں کی ہیلپ کرنا، سپورٹ کرنا، مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے خاص جو مقاصد ہیں یہ ہیں کہ ہم اور زیادہ لوگوں سے کوئی چندہ لیں، اور زیادہ ڈالرز لیں۔ ایک بڑی شرمناک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس بات سے سیکھیں۔ یہ بات شیئر کرنے والی، بتانے والی نہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اتنی شرمناک بات، میں نے کسی سے پوچھا جناب آپ یہ تصویریں کیوں بناتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کی تضحیق کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے مجھے ایک کہا کہ
अगर हम तस्वीरें ना बनाएं तो हम जहां से सपोर्ट लेते हैं वो कैसे हमें भिजवाएंगे कि हम इन लोगों की सपोर्ट करें। हम उन्हें सबूत के तौर पे भिजवाते हैं और लगाते हैं सोशल मीडिया पर ताकि वो लोग हमें सपोर्ट दें। एक तो पहली बात, शर्मनाक बात यह है कि ये अपनी जेब से तो मदद कर भी नहीं रहे हैं, अपनी जेब से मदद भी नहीं कर रहे और इसका क्रेडिट ये खुद ले रहे हैं। मदद किसी और से आ रही है और क्रेडिट इसका ये खुद ले रहे हैं। ये इंतहाई शर्मनाक, अफसोसनाक बात है कि मदद कोई कर रहा है और क्रेडिट इसका कोई और ले जा रहा है। और इसके बाद एक नया इनका प्लान ये होता है कि मदद करो और उसके बाद डॉलर्स और कमाओ, मदद करो और पैसे और हथियाओ ताकि और जो हमारी तिजोरियां हैं भर सके। और याद रखें, ये जो बाहर से मंगवा के आपको हेल्प देते हैं, क्या आप समझते हैं कि ये आपको पूरी हेल्प देते हैं? खुदा माफ करे, ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आपके लिए किसी ने कोई $100 भेजा है तो आपको 100 मिल जाए। हरगिज नहीं, ये उसमें से 50 अपने पास रखेंगे और 50 आपको देंगे और बेईमानी की रोटी खुद भी खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं और फिर आपको $50 दे के भी सोशल मीडिया पर आपको जलील करेंगे, आपकी तज़हीक करेंगे। मैं खास तौर पे खुदा के कलाम में से आपकी रहनुमाई कर रहा हूं कि खुदा का कलाम यह बयान करता है कि वो अपना अजर पा चुके। जितने लोगों ने इस तरह का रवैया अपना रखा है उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो अपना अजर पा चुके। खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत वाज़ेह तरीके से इस बात को बयान किया है कि जो लोग दुनिया में रहते हुए शाबाश ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई नेकी करते हैं उसे फेसबुक पे डाल देते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं वेल डन, बहुत खूब, बहुत अच्छा किया आपने। तो इस तरह से जितने कमेंट्स आते हैं, शाबाश आती है, तो इसका मतलब यह है कि आपने अजर वो पा लिया है। याद रखें, एक बड़ी खूबसूरत बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किए कि वो अपना अजर पा चुके, यहां पा चुके के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है एपेखो इस्तेमाल हुआ है और W.E. वाइन्स डिक्शनरी के मुताबिक इसको इस तरह बयान किया गया है कि उन अयाम में ये एक कारोबारी इस्तिलाह थी। ये जो अजर पा चुके, ये एक कारोबारी इस्तिलाह थी, ये डिक्शनरी बयान करती है, जिसके लिखने के बाद वसूल कुनिंदा रसीद पर अपने दस्तखत कर देता था, साइन कर देता था और उसका मतलब यह था कि मैंने अपनी सारी जो रकूम है ये वसूल कर ली है। यूनानी वतन में इसका जो आम तर्जुमा हुआ वो ये कि उन्होंने अपना पूरा अजर जो है वो पा लिया है और उसे हासिल कर लिया है। यानी इसका मतलब यह है, जैसे मैं बयान कर रहा हूं, कि ये एक कारोबारी इस्तिलाह थी और कारोबारी इस्तिलाह के बाद चूंकि एक रसीद बुक होती है, उस पर कोई हमें अमाउंट देता है तो हम रसीद बुक पर साइन कर देते हैं कि जी जो मेरी रकम मुझे मिलनी चाहिए थी मैंने वो वसूल कर ली है, अभी मेरा मजीद आपकी तरफ किसी तरह का हिसाब किताब जो है ये बाकी नहीं है। जब आप दुनिया में शाबाश वसूल कर लेते हैं तो याद रखें ये उस वक्त यूनानी इस्तिलाह के मुताबिक ये कारोबारी इस्तिलाह थी, जिसके मुताबिक आप शाबाश जब रिसीव करते हैं तो एक लिहाज से आप अपनी नेकी के बदले में साइन कर देते हैं कि इसका अजर जो है ये मुझे मिल गया है, अब मैं मजीद एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं। आपको जो कुछ जमीन पे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, अजर मिलना चाहिए, वो सब आपने हासिल कर लिया है। अब आपका मजीद जो रिवॉर्ड है, जो अजर है, वो आसमान पर बाकी नहीं है, क्योंकि आप जमीन पर वो सारा जो रिवॉर्ड है, जो अजर है, उसको ले चुके हैं। इस बात को मद्देनजर रखें कि जब हम किसी के साथ नेकी करते हैं या हम किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं और उसके बाद हम उसको सोशल मीडिया पर लगा देते हैं और सोशल मीडिया पर लगाने के बाद बड़ी शाबाश वसूल करते हैं और लोग हमें बहुत अच्छा समझते हैं, जी बड़ा खूबसूरत, बहुत जबरदस्त आपने काम किया, जी बड़ा नेकी का काम किया, जी फलां की हेल्प कर दी, मदद कर दी। तो जितने लोग आपको ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए बाद में,
और जो रकम आपको बाद में मिलनी चाहिए वो आपने पहले ही वसूल कर ली है। आसमान पर अब आपका कोई अजर, कोई हिस्सा और कोई बखरा मौजूद नहीं है। सो खुदारा रहम करें अपने ऊपर भी और मसीही कौम के ऊपर भी, जिन लोगों के नाम पर और जिन लोगों को देने के जरिए से आप अपना कारोबार चमकाते हैं और उनकी तज़हीक करते हैं, उनकी तजलील करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं। खुदारा इस बात से बाज आ जाएं। इसका कोई रिवार्ड नहीं है, इसका कोई, हां डॉलर आपको मिल सकते हैं, हां लोगों से चंदा आप इकट्ठा कर सकते हैं, हां लोगों के साथ आप खेल सकते हैं और उनसे पैसा ले सकते हैं, लेकिन याद रखें आसमान पर आपका कुछ अजर नहीं है। सो अगर आप मदद करना चाहते हैं, अगर आपको बड़ा ही शौक है मदद करने का, तो अपनी जेब से करें, अपनी जेब से करें, अपने पास से करें, अपने पल्ले से करें, ताकि आपको भी इसका पता चले कि आपने किसी की मदद की है, किसी की हेल्प की है। आप किसी की मदद करके देखें, खुदा आपको सरफराज करेगा, बढ़ाएगा और ज्यादा आपके रुपए पैसे में वुसअत देगा। ये खास तौर पे यहूदियों के लिए अज हद जरूरी था। अगर आप मेरे साथ देखें तो इस्तिस्ना की किताब मेरे साथ निकालिए और इसका 15वां बाब, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो जरूर मेरे साथ निकालिए। इस्तिस्ना की किताब, इसका 15वां बाब और इसकी 7वीं आयत से 11वीं आयत तक मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। इस्तिस्ना की किताब, इसका 15वां बाब 7वीं आयत से 11वीं आयत, लिखा है, जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है, अगर उसमें कहीं तेरे फाटकों के अंदर तेरे भाइयों में से कोई मुफलिस हो, तो तू अपने उस मुफलिस भाई की तरफ से ना अपना दिल सख्त करना और ना अपनी मुट्ठी बंद कर लेना। ये खास तौर पे खुदा का कलाम हमें तहरीक देता है, मोटिवेट करता है और हमें इस बात के लिए प्रिपेयर करता है, तैयार करता है कि हम दूसरों की हेल्प करें, मदद करें। बहुत जरूरी है कि हम दूसरों की हेल्प करें, बहुत जरूरी है कि हम दूसरों की मदद करें। खुदा चाहता है कि आप दूसरों की हेल्प करें, खुदा चाहता है कि आप दूसरों की मदद करें। और आगे लिखा है, बल्कि उसकी एहतियाज रफा करने को जो चीज उसे दरकार हो, उसके लिए तू जरूर फराख दस्ती से उसे कर्ज देना। अगर कर्ज की भी जरूरत है, किसी को कोई बहुत खुददार लोग होते हैं जो आपसे उधार मांगते हैं, तो जरूर अगर आपके पास है तो जरूर उन्हें मदद कर सकते हैं। खबरदार रहना कि तेरे दिल में यह बुरा ख्याल न गुजरने पाए कि 7वां साल तो छुटकारे का साल है, नजदीक है, और तेरे मुफलिस भाई की तरफ से तेरी नजर बद हो जाए और तू उसे कुछ न दे और वो तेरे खिलाफ खुदावन से फरियाद करे और ये तेरे लिए गुनाह ठहरे। ये नामदद करना भी एक गुनाह है, गलती है, खता है। सो अच्छा है कि आप लोगों की मदद करें, बल्कि तुझको उसे जरूर देना होगा और उसको देते वक्त तेरे दिल को बुरा भी न लगे, इसलिए कि ऐसी बात के सबब से खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कामों में और सब मामलों में जिनको तू अपने हाथ में लेगा तुझको बरकत बख्शेगा। और चूंकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझको हुक्म देता हूं कि तू अपने मुल्क में अपने भाई यानी कंगालों और मोहताजों के लिए अपनी मुट्ठी खोलना। यह खुदा का खास पैगाम है जो खुदा ने बनी इस्राएल कौम को दिया कि इन मोहताजों की और इन मुफलिसों की मदद की जाए, गरीबों की मदद की जाए। खुदा का कलाम हमें इस बात की तहरीक देता है, हमें सिखाता है कि हम मदद करें, दूसरों की मदद करें। लेकिन इसके साथ साथ जो खुदा का कलाम हमें तहरीक देता है, जो हुक्म देता है, वो ये है कि हम इसके लिए इसका डंडोरा ना पीटें, नरसिंगा ना बजवाएं। और खुदा के कलाम में बहुत वाज़ेह तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने देने का तरीकेकार जो है ये वज़ा किया है। हमें इस तरीकेकार को अपनाना चाहिए, हमें इस तरीकेकार को फॉलो करना चाहिए, ताकि जो हमारी नेकियां हैं इनका हमें बाद में रिवॉर्ड भी मिले, अजर भी मिले। अगर आप इस तरह से करते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, तो याद रखें आप सारा इसका अजर जो है ये खो रहे हैं। यहां पे मैं दोबारा इस हवाले को आपके लिए तिलावत करूंगा ताकि आपको मजीद इस बात की समझ आ सके। लिखा है, पस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा न बजवा,
जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं। खास बात सुन लें कि जो सोशल मीडिया पर तस्वीर लगाते हैं ये उन रियाकारों की मानिंद हैं, ये उन रियाकारों की मानिंद हैं। कह लें कि ये रियाकार हैं और ये क्या हैं, ये खास तौर पे चीट करते हैं, आपको भी चीट कर रहे हैं और खुदा को भी। ये कहते हैं हम मसीही हैं, ये कहते हैं हम खुदा के खादिम हैं, ये कहते हैं जी हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, हम मसीह के कलाम पे अमल कर रहे हैं। भाई किस कलाम पे अमल कर रहे हैं, हमें वो हिस्सा निकाल के दिखा दें जहां खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि गरीब की मदद कर और इसकी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर लगा। ये हमें निकाल कर दिखा दें ताकि हमें भी पता चले कि आप मसीही भी हैं और आप खुदा के कलाम पे अमल भी कर रहे हैं। आपके ऐसा करने से ऐसा लग रहा है जैसे आप खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं हैं, आप खुदा के कलाम को जानते नहीं हैं, क्योंकि अगर जानते हैं तो फिर यह रियाकाराना रवैया आपका नहीं होगा। अगर आप खुदा के कलाम को जानते हैं तो फिर सोशल मीडिया पर लोगों की तज़हीक नहीं करेंगे, उनकी तजलील नहीं करेंगे, मदद जितनी मर्जी करें। हम हर तरह से आपको इनकरेज करते हैं, बतौर मसीही हम सबकी ये ड्यूटी है, फर्ज है कि हम खास तौर पे लोगों की मदद करें, लोगों को सपोर्ट करें, लोगों की हेल्प करें। उन्हें अगर कर्ज भी देना पड़े तो हम दें, जहां तक हो सके हम उनकी मदद करें। जो कुछ हम कर सकते हैं जरूर लोगों के लिए करें, लेकिन इसका वावेला ना किया जाए, इसका शोर ना मचाया जाए, इसकी पिक्चर्स बनाकर सोशल मीडिया पर ना लगाई जाए। खुदा का कलाम बयान करता है रियाकार इबादत खानों और कूचों में ऐसा करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। गौर से सुने, ताकि लोग उनकी क्या करें, बड़ाई करें। हम सोशल मीडिया पर तस्वीरें क्यों लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं ताकि लोग हमारी बड़ाई करें। बल्ले बल्ले बड़ी बात है जी, फलां शख्स ने इतने लोगों को इतना खाना दे दिया है। और दिया किसने है, उसने दिया भी नहीं है। जिसकी बल्ले बल्ले हो रही उसने दिया ही नहीं है, उसने कहीं से, वो खुद बेकारी है, कहीं से मांग के उसने दिया है और वो बिला वजह रिवॉर्ड अजर ले रहा है और जमीन पर लोगों के सामने। अच्छा, लेकिन याद रखें ये जितने ऐसे रियाकार लोग हैं आसमानी मकामों में, इनके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई अजर नहीं है। जो कुछ है ये जमीन पर हासिल कर रहे हैं, पा रहे हैं, आसमान पर इनके लिए कुछ नहीं। लिखा है ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। तस्वीरें लगाने के पीछे मकसद क्या है? सिर्फ यह मकसद है कि लोग मेरी बड़ाई करें, मुझे प्रेज करें और मेरी तारीफ करें, लोग मुझे अच्छा कहें। बल्ले बल्ले, ये बड़ी बात है, इस शख्स ने इतनी मदद की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। इसकी मैं पहले डिटेल बता चुका हूं अजर पाने की, कि ये अपना वो चेक जो है, अपनी जो रकम जो है, अजर जो है, ये वसूल कर चुके हैं और इनके अपने सिग्नेचर हो गए हैं, साइन हो गए हैं और इनको अब मजीद इसकी कोई वसूली नहीं होगी, इसका अजर और कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपना पूरा अजर जो है, पूरा हिस्सा जो है, पूरी रकम जो है, ये वसूल कर चुके हैं। फिर बड़ी जबरदस्त बात, एक नया पैटर्न खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पे इंट्रोड्यूस कराया है। बल्कि जब तू खैरात करे, जब तू खैरात करे, यहां पे बड़ा खूबसूरत लफ्ज जिसका चुनाव खुदावंद यीशु मसीह ने किया है कि जब तू खैरात करे। ऐसा नहीं लिखा कि अगर तू खैरात करे। अगर का लफ्ज आता तो ये एक ऑप्शनल बन जाता कि अगर कभी मर्जी हो तो हम कर दें। और इसके बाद आप इसी लफ्ज को दुआ के साथ भी देख लें और रोजे के साथ भी देख लें कि जिस तरह जितनी जरूरी दुआ है, जितना जरूरी रोजा है, उतना ही जरूरी यह है कि हम खैरात करें, हम लोगों की मदद करें, हम उनकी सपोर्ट करें। लिखा जब तू खैरात करे, फिर लिखा है जब तू दुआ करे, जब तू रोजा रखे। ये ऐसा है जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी से कि मेरे जाने के बाद ईमानदार जो हैं ये जरूर रोजा भी रखेंगे, दुआ भी करेंगे और खैरात भी करेंगे। लेकिन पैटर्न ये है कि जब तू ऐसा करने लगे, ऐसे ही है जैसे कोई आपका साथी जो है वो ड्यूटी पे गया है, काम पे गया है, ऑफिस में गया है या कहीं भी जहां बिजनेस करता है वो गया है, तो आप उसे कहें कि जब आप वापस आए, आपको पता है
कि उसने वापस आना ही आना है। आप उसे कहें कि जब आप वापस आए तो ये काम करते आए। इसका मतलब ये है कि आपको कंफर्म है, ये बात आपके लिए हतमी है कि जो साथी गया है, भाई बहन या कोई भी गया है, उसने वापस आना है। और इसी तरह से जब का लफ्ज यहां पे जो इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह यह तवक्को करते हैं और इस बात के लिए वो प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं कि जो ईमानदार हैं ये क्या करेंगे, दुआ भी करेंगे, रोजा भी रखेंगे और खैरात भी देंगे। जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। अब कुछ लोग इस पे बासो मुबासा करते हैं कि ये जी दाना अगर दे रहा है तो बाएं को ना पता हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। खुदावंद यीशु मसीह जो है यहां पर खास तौर पे जिस बात को बयान की, तशबीहन इस बात को बयान कर रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि जो आप देते हैं किसी दूसरे को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। आप चंदा कैसे अच्छे तरीके से डालते हैं, अपनी मुट्ठी बंद करते हैं और अपने पैसे को ऐसे छुपाकर चंदे की थैली में डालते हैं, तो आप समझ लें कि जो खैरात है वो भी आपने इसी तरह से करनी है कि आपने ऐसे देना है ताकि आपके साथ बैठे हुए शख्स को भी इसका इल्म ना हो सके। अच्छा भाई, अगर तस्वीरें बनाने से मैं एक सुन रहा था किसी शख्स को, जी मैं तस्वीरें इसलिए लगाता हूं ताकि जी लोगों को तहरीक मिले, ताकि जी जो दूसरे लोग हैं उनको हौसला अफजाई मिले, और बहुत सारे लोग, भाई कैसी अजीब बात कर रहे हैं। अगर आपकी तस्वीर से लोगों को मोटिवेशन मिलती तो यहां पे लिखा होता कि जी लोगों की हेल्प करें, मदद करें और तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर लगाएं ताकि दूसरों को तहरीक मिले। भाई आप रोजा रख के तस्वीर क्यों नहीं लगाते भाई मेरे, और लगाएं और कहें कि जी मैंने रोजा रखा है, और ताकि दूसरों को तहरीक मिले। आप कैसे गलत खुदा के कलाम की इंटरप्रिटेशन करते हैं, कैसे गलत लोगों को खुदा का कलाम सुनाते हैं। भाई कैसे आपसे तहरीक मिल सकती है? अगर सोचें, हमारी तहरीक का जो सोर्स है वो खुदा का कलाम है। अगर किसी को खुदा के कलाम से तहरीक नहीं मिल रही तो आपसे भी किसी को तहरीक नहीं मिलेगी, और अगर आपसे तहरीक मिलेगी भी तो चूंकि उसका सोर्स ठीक नहीं है इसलिए वो तहरीक भी ठीक नहीं होगी। अगर आपको देखकर कोई शख्स ऐसा करेगा तो इसका मतलब है या तो वो जेलसी से कर रहा है या आपको दिखाने के लिए कर रहा है कि देख ले भाई तूने भी ये किया, मैंने भी कर दिया है। सो सोर्स भी गलत है और वे भी गलत है। सो खुदारा ये कोई तरीका नहीं है लोगों को मोटिवेट करने का, मोबिलाइज करने का, जी मैं लगाऊंगा तो फलां को तहरीक मिलेगी। कुछ नहीं होगा। आपके तस्वीर लगाने से सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा यह है कि आपकी बड़ाई, और सबको पता है कोई यहां बेवकूफ लोग नहीं है। आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं लोग, आप बहुत अक्लमंद हैं, बेवकूफ नहीं है, समझते हैं कि आप तस्वीर क्यों लगा रहे हैं। मैं और बहुत सारी सच्चाइयां लोगों के सामने ला रहा हूं। ये जो खास तौर पे चर्चेस में बुलाते थे लोगों को बेवकूफ समझते हैं, वो समझते हैं इनको क्या पता है। भाई हमें सब पता है, भाई हम आम जो लोग हैं हम सब जानते हैं। आप ऐसे लोगों को जो ईमानदार भी नहीं है उनको बुलवाकर चर्च में केक क्यों कटवाते हैं? हमें नहीं पता, हम बेवकूफ हैं, या आप बेवकूफ हमें बनाते हैं कि जी आपको क्या पता है, हम तो ये जी भाईचारा फैला रहे हैं। भाई कोई भाईचारा नहीं है, ये कैसा भाईचारा है? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मिली भगत है। आपने बाद में उनसे फायदे उठाने हैं, आपने ये क्राउड दिखाना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, जो कि अब आप नहीं बना सकते। याद रखें, अब जो हमारी कौम है ये जाग चुकी है। अब हमारे लोग जो हैं इन्होंने अपनी आंखें खोल ली हैं और बेदार हो चुके हैं। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे जो आप इस तरह के काम करके मासूम लोगों को बेवकूफ बना के उनकी तज़हीक करते रहे हैं। अब याद रखें कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इससे भी बड़ी तहरीक चला रहे हैं कि जितने भी लोग और बहुत सारे कामों में मासूम मसीहियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत जल्द हम उनकी सारी सच्चाइयां आपके सामने लाने वाले हैं ताकि आप उनको समझ सकें, जान सकें कि ये करते क्या हैं, ये दिखाते क्या हैं। ये जितने आपको सपोर्ट करते, हेल्प करते, याद रखें इनमें से 90% वो लोग हैं जो डॉलर्स मांगते हैं, पहले जाकर भीख मांगते हैं, फिर आपके सामने वो आकर आपको ऐसे देते हैं जैसे वो आपके कोई मालिक हैं,
इन्होंने पहले भीख मांगी होती है, फिर आपको ये देते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर आपकी तज़हीक भी करते हैं, तजलील करते हैं, बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं होने देंगे। और याद रखें, हमने बड़े नरम लहजे से ये सारी बातें की हैं, लेकिन आइंदा से अगर कोई लगाएगा तो उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोगों में ये शऊर आ चुका है कि आप तस्वीरें क्यों लगाते हैं। सो इस दफा खुदावंद का शुक्र है कि जब से मैंने ये तहरीक चलाई है, सोशल मीडिया पर मैं मैसेजेस दे रहा हूं, बहुत कम लोग आप तस्वीरें लगा रहे हैं। सो जो लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे, उनको सख्त खमियाजा भुगतना पड़ेगा, बाज आ जाएं, खुदावंद के कलाम पर अमल करें। लिखा है, जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। मतलब यह है कि जब तू किसी की मदद करता है तो तस्वीरें बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, और इसके बाद इन्हें सोशल मीडिया पर डालने की भी कोई जरूरत नहीं। अगर आप नहीं ना कर सकते, अगर आप समझते हैं कि जी पीछे से नहीं आएंगे, खुदारा आप बंद कर दें, आप बंद कर दें ऐसी सपोर्ट, ऐसी हेल्प ही बंद कर दें जहां से आप किसी की हेल्प ही नहीं कर रहे, आप खुद भी बेईमानी कर रहे हैं, आप खुद भी जहन्नुम में जाएंगे और आप अपने साथ कई और लोगों को भी ले डूबेंगे। ऐसे कामों से ही आप बाज आ जाएं। खुदा जिसने इंसानों को पैदा किया है, आपसे बड़ा सोर्स खुदा है। अगर आप हेल्प बंद कर देंगे तो खुदा अपने लोगों की हेल्प करेगा, मदद करेगा। अगर आप 2 नंबर तरीके से मदद कर रहे हैं तो इसको बंद कर दें। अगर आप अपने पास से कर रहे हैं, अपनी जेब से कर रहे हैं, खूबसूरत बात है, खुदावंद आपको मुतहर्रिक करे और ज्यादा ब्लेस करे, बरकत दे, जरूर लोगों की हेल्प करें। लेकिन अगर आप वहां पे भीख मांगते हैं और यहां पे आके नंबर टांगते हैं, आपका यह तरीकेकार इंतहाई गलत है और इस तरीके से आप अपना भी इमेज खराब कर रहे हैं। अब हमारे लोग बिल्कुल समझ गए आपको, जितने लोगों ने माजी में ऐसा किया है या अब कर रहे हैं, आप सबको लोग जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। लोग आपकी तस्वीर देखकर ही समझ जाते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या काम करते हैं। सो आगे आखिरी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। लिखा है, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। मकसद क्या है? खैरात पोशीदा रहे। आप ढंडोरा पीटते हैं, आप तस्वीरें लगाते हैं, यीशु मसीह ने कहा है खैरात पोशीदा रहे, या आपकी जो हेल्प है, मदद है लोगों के लिए, वो पोशीदा रहे। आप उसको छालते नहीं जी मैं ज्यादा अक्लमंद हूं। भाई आप यीशु मसीह से भी ज्यादा अक्लमंद है, यीशु मसीह ने कहा है पोशीदा रहे। आप कहते हैं सोशल मीडिया पे लगाऊंगा ताकि लोग मुतहर्रिक हों। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के पास आप जितनी अक्ल नहीं थी, आप तो बहुत अक्लमंद हैं, आप तो बड़े ही दना बंदे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए डालता हूं। अब यीशु मसीह का मकसद क्या है? मकसद यह है कि खैरात पोशीदा रहे, और आप ज्यादा अक्लमंद साहब बने हुए हैं और आप समझते हैं कि मैं ज्यादा यीशु मसीह से भी अक्ल ज्यादा रखता हूं और यीशु मसीह ने कहा पोशीदा रहे, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं इसकी तस्वीरें लगानी चाहिए ताकि दूसरों को तहरीक मिले। आप इस तरह की इंटरप्रिटेशन को बंद कर दें, गलत है और इसका खुदा के कलाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लिखा, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अगर हम खुदा से कोई रिवॉर्ड पाना चाहते हैं, अजर पाना चाहते हैं, तो इसकी एक ही सूरत है, एक ही इसकी वजह है, वो सिर्फ ये है कि हम अपनी जो खैरात है, जो लोगों की सपोर्ट है, जो लोगों की हेल्प है, जो लोगों की मदद है, उसको पोशीदा रखें, उसको राज में रखें, जरूर मदद करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने इस वक्त लाइव सर्विस में हमें ज्वाइन किए हुए हैं, बाद में 20 वीडियो को लोग देखते हैं, आप सब जहां तक हो सके, जो हो सके, आप लोगों की मदद करें। लेकिन आप खुद भी बेकारी ना बन जाएं कि जी मैंने उसकी मदद करनी है तो आप मेरी मदद करें। तो इस तरह से आधे आप खा जाते हैं, आधे आप दूसरों को सपोर्ट के तौर पे देंगे और फिर तस्वीरें भी बनवाएंगे। खुदारा इस अक्लमंदी से बाज आ जाएं और जरूर लोगों की मदद करें, जरूर लोगों की हेल्प करें, लेकिन इस तरह का रवैया ना अपनाएं कि जिससे लोगों की इंसल्ट हो या बेइज्जती हो या आपका इमेज खराब हो या आपका आसमान पर अजर ही ना रहे। क्या आप काम करें कि उसका अजर ही ना मिले? ऐसा काम करें कि जिसका आसमान पर आपको अजर मिले, रिवॉर्ड मिले। खुदावंद हम सबको अपने जिंदगी बख्श पाक कलाम के वसीले से बरकत अता करे, में तौफीक दे, फजल दे, ताकि हम जो भी खैरात करते हैं, जिस भी तरह से दूसरों की हेल्प मदद करते हैं, उसको पोशीदा रखें ताकि जमीन पर नहीं आसमान पर हमें खजाना मिले। खुदा अपने कलाम के वसीले बरकत बख्शे। अभी वक्त है कि हम
दुआ करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। जितने लोग इस लाइव सर्विस में शामिल हैं ज़रूर अपनी दुआएं दरख्वास्तें भेज सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और खुदावंद का शुक्र हो जितने लोग यहाँ पे इस वक्त वॉच कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे। ज़रूर इस वीडियो को आप दूसरों के साथ भी अभी भी शेयर कर सकते हैं, बाद में भी शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। अंदरून मुल्क बैरून मुल्क से हमारे साथी खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे। जितने आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं ज़रूर इस कलाम को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों के लिए आप बाबरकत बन सकें। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे। बहुत सारे खुदावंद के खुदाम हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। मैं दुआगो हूँ खुदावंद और ज़्यादा इन्हें ब्लेस करे, बरकत दे, सलामती दे और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। अपनी दुआएं दरख्वास्तें आप भेज सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। जी एक मैसेज मुझे आ रहा है कि आप हयादार लिबास पर भी मैसेज दें। मैंने अगर आपने मेरा पेज लाइक किया है या यूट्यूब पे मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर आप इस मैसेज को सुन सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे मैसेज दिया हुआ है, सो ज़रूर इस मैसेज को सुन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आप इतना इंटरेस्ट लेते हैं, खुदावंद आपके साथ हो और ज़्यादा खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आप अपनी दुआएं दरख्वास्तें भिजवाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और इसी तौर से मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप ज़रूर इस लाइव सर्विस में शामिल हुआ करें। और इसी तौर से जुमे के रोज़ बड़ा एक अहम टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और वो टॉपिक ख़ास तौर पे जो लोग कहते हैं कि जो 25 दिसंबर है ये क्रिसमस नहीं है, इस पे क्रिसमस को मनाना नहीं चाहिए, ये तारीख गलत है और 300 सालों के बाद ये तारीख निकली। इन सारी बातों का जवाब हम देंगे। और ख़ास तौर पे मैं आप सबको इनकरेज करता हूं कि ज़रूर जब ये पोस्ट आए तो उसे दूसरों के साथ शेयर भी करें और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी करें कि जुमे के रोज़ हम ख़ास तौर पे, मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भिजवाया है कि इस पे कब आप कलाम सुनाएंगे, तो जुमे के रोज़ मैं इस पे कलाम सुनाऊंगा। याद रखें जितने लोग इस वक्त लाइव सर्विस में मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, जुमे के रोज़ ज़रूर आप लाइव सर्विस में शामिल हों। जो लोग सवाल उठाते हैं कि क्रिसमस जो है ये 25 दिसंबर को नहीं मनाना चाहिए और बहुत सारे लोग तो कहते हैं इसे मनाना ही नहीं चाहिए, तो मैं कलाम मुकद्दस में से इस बात को साबित करूंगा कि हमें इसे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। और इसी तौर से तारीख को मद्देनजर रखते हुए तारीखी जो शवाहिद है मैं आपके सामने पेश करूंगा कि ये तारीख जो है ये सिर्फ और सिर्फ 25 दिसंबर है, जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है, जिसे हम मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। पूरी दुनिया इस डे को सेलिब्रेट करती है और इन तमाम लोगों को हम जवाब देंगे और ख़ास तौर पे इस बात को साबित करेंगे। आप उन तमाम लोगों को जो कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए उन्हें दावत दें। जुमे के रोज़ शाम 7 बजे लाइव सर्विस में हम खास इस पैगाम के ताल्लुक से सीखेंगे, जानेंगे। और इसी तौर से आप सब जो इस लाइव सर्विस में शामिल हैं, आप सब जरूर मेरे पेज को भी लाइक करें और इसके साथ यूट्यूब चैनल को भी जो पास्टर मुनव्वर खुर्शीद के नाम से है इसे जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि ज्यादा लोग खुदा के कलाम को सीखें, जानें और दूसरों के लिए भी आप बाबरकत बने। इसी तौर से आप अपनी ऑफरिंग्स, हदिये, नजराने भिजवा सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप राब्ता कर सकते हैं या जो जैज़ कैश नंबर आपके सामने शो हो रहा है इस नंबर पर भी अपने हदियाजात आप भेज सकते हैं। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, बरकत दे और जरूर इस लाइव सर्विस के लिए भी दुआ करते रहें ताकि खुदावंद और ज्यादा इस लाइव सर्विस को वुसअत दे और हमारी खिदमत को वुसअत दे ताकि बहुत सारी सच्चाइयां लोगों के सामने आती रहें और खुदा अपने लोगों को ब्लेस करे, बरकत दे। आए अपने सरों को खुदावंद की ज़ुरी में झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। खुदावंद मेहरबान पाक बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे तमाम प्यारों के लिए जिन्होंने खुदावंद इस लाइव सर्विस के वसीले से खुदावंद तेरे कलाम को सुना है या बाद में खुदावंद जो वीडियो की सूरत में खुदावंद इस कलाम को सुनते हैं उन सब को खुदावंद तू ब्लेस कर, बरकत दे, कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद तेरी हुजूरी में मिन्नत करते हैं जो लोग बीमार हैं खुदावंद उन्हें तंदुरुस्त व तवाना कर, जो बेरोजगार हैं खुदावंद उन्हें अच्छा रोजगार अता कर, जो बे औलाद हैं खुदावंद उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। कादर मुतलक खुदा इसी तौर से जो लोग रूहुल कुद्स के भूखे प्यासे हैं और खुदावंद रूहुल कुद्स की तड़प रखते हैं
खुदावंद कादिर मुतलक खुदा रूहुल कुद्स उनकी ज़िंदगी में बड़े ज़ोर से काम करे और जलाली काम करे, रूहुल कुद्स उन्हें मिले और वह तेरी शुक्रगुजारी करे और कसरत से खुदावंद तो अपने लोगों को ब्लेस कर, बरकत दे और ख़ास तौर पे क्रिसमस के इन अयाम में अपने लोगों को ए खुदावंद तो बड़ी बरकत दे और ए खुदावंद ये दिन सबके लिए बड़े बाबरकत रहें, मुबारक ठहरें और इन दिनों में हम और ज़्यादा तेरी कुर्बत में बढ़ें, तेरे कलाम में तरक्की करें। ए मेहरबान पाक बाप, जितने भी प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए हैं, जहाँ जहाँ प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए हैं, खुदावंद अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर, ब्लेस कर, कोरोना वायरस जैसी वबा से खुदावंद हम सब को महफूज रख। खुदा मुल्क के पाकिस्तान में तेरे लोग महफूज रहें और खुदावंद बैरून मुल्क भी खुदावंद जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में खुदावंद कोरोना वायरस के मरीज हैं, खुदावंद उनको शिफा दे, तंदुरुस्ती दे और सारे इस वायरस को खुदावंद तू खत्म कर दे और खुदावंद बहुत जल्द दुनिया में बहाली आ सके, रेस्टोरेशन आ सके और हम सब तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते रहें। कादिर मुतलक खुदा अपने इन तमाम प्यारों को जो है खुदावंद इस वक्त हमारे साथ शामिल है, अपनी दुआएं दरख्वास्तें भेज रहे हैं, खुदावंद तो इन सब को बड़ी बरकत अता कर ताकि इसी तौर से खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे और हम तेरी कुर्बत में बढ़ते रहें, यीशु मसीह नसरी के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, बरकत दे। मेरी दुआ है खुदावंद इस क्रिसमस को और ज़्यादा आपके लिए बाबरकत बनाए, ये अयाम आपके लिए बड़े बाबरकत रहें और खुदावंद आपको और ज़्यादा तरक्की और अफजूनी अता फरमाए और ज़रूर आप इन तमाम लाइव सर्विसेज को देखते रहें, वॉच करते रहें, दूसरों के साथ शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को आपके वसीले से सीख सकें, आपके ज़रिए से सीख सकें। जुमे के रोज़ लाइव सर्विस देखना ना भूलें, बल्कि पूरी मसीह कौम को मैं इस बात के लिए दावत देना चाहता हूं कि ज़रूर इस लाइव सर्विस में शामिल हों और उन तमाम लोगों को जवाब दें जो खास तौर पे कहते हैं कि क्रिसमस जो है ये 25 दिसंबर को नहीं मनाना चाहिए या क्रिसमस मनाना ही नहीं चाहिए, क्रिसमस मनाना ही ठीक नहीं है। सुने बताएंगे कि क्यों हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, खुदा के कलाम में क्या इसकी तालीम पाई जाती है और तारीख को मद्देनजर रखते हुए तारीखी जो शवाहिद हैं उनके मुताबिक हम इस बात को साबित करेंगे कि 25 दिसंबर को किस तरह से ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, हिस्ट्री में इसका आगाज कब किया गया, इतने साल अगर नहीं मनाया गया तो क्यों नहीं मनाया गया, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है। सो जरूर इस लाइव सर्विस में आप शामिल हों जुमे के रोज शाम 7 बजे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको